Yes, this is the video for exercise 10.2. Question number 1 to 8 we have covered in previous videos. Now I am taking question number 9 and exercise 10.2. The vertices of the triangle PQR are, the vertex of P is 2, 1 and Q -2 and 3 and R 4 and 5. I am taking question number 9. Find the equation of the median through R. First let's go for the figures. This is P, this is Q and this is R. This is 4, 5. This is 2, 1. This is -2, 3. RS is the median. Median means line joining the midpoints and opposite vertex. It means S is the midpoints. S is midpoint. Therefore, the coordinate of S will be 2 minus 2 by 2 and 1 plus 3 by 2 midpoint formula. That is, coordinate of S will be 0 and 2. Now, slope of RS is 5 minus 2 upon 4 minus 0. That is 3 by 4. R point A, S point A, y2 minus y1 upon x. Equations of RS थ्रू आप R से ले सकते हैं, R.45 है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 4. दिस इंप्लाई 3x माइनस 4y प्लस 20 प्लस 8 is equal to 0. So this is your answer. And this is your question number 9. Let us take a question number 10. In every question you should draw the figures. ये माइंड ध्यान में रख लेना. Find the equation of the line passing through the points and perpendicular to the points. देखिए लाइन इसकी मान लेते हैं, इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट ए से पास कर रही है -3, 5 एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू एंड पी के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 2, 5 एंड -3, 6. Actually, this is the statements. कि find the equation of the line which passes through point A and perpendicular to the line through this 2, 5 and this. Now the first target is slope of PQ, y2 minus y1, 6 minus 5 upon -3 minus 2 minus 1 by 5. Slope of line L is 5. Equation of L through A वही point slope form, y minus 5 is equal to 5 times of x plus 3. Final answer is 5x minus y plus 20 equal to 0.
This is question number 10. Let's have question number 11. A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3. कोई लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 0 है और B पॉइंट 2, 3 है। कोई लाइन L है परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, ये लाइन L जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। डिवाइड इन द रेशियो 1:n, ये पॉइंट हम C कह देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB। C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 2 + n डिवाइडेड बाय n + 1 सेक्शंस फार्मूला, कॉमा 3 डिवाइडेड बाय n + 1। दिस इज द पॉइंट C। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L निकालनी है। सेम स्लोप ऑफ AB निकाल लीजिए कि 3 - 0/2 - 1, दिस इज 3। स्लोप ऑफ लाइन L निकाल लीजिए -1/3। इक्वेशन ऑफ लाइन L निकाल लीजिए y - y1 n + 1 into is equal to -1/3 into x minus n + 2 divided by n + 1, x + 3y minus 9 times of n + 1 minus n + 2 divided by n + 1। तो x + 3y माइनस साइन कॉमन, 9 - n n + 1 of x plus 3 times of n + 1 of y plus n - 7 equal to 0. This will be considered to be the answers of your question number 11. Is it clear? यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है कि जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये n + 11 आ जाएगा और आउटसाइड जो है वो माइनस साइन रहेगा। तो दिस इज द माइनर मिस्टेक्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, 10 and 11. Now let's have next question number 12. Find the equation of the line that cut off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3.
देखिए फिगर्स में ये क्वेश्चंस बनेगा, 2 और 3 पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होगा। ए के कोऑर्डिनेट्स में 2 और 3 ले लेता हूँ। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब है दिस पॉइंट में बी कंसिडर्ड एज P and this is Q, means these two are equals. Equal intercepts means X intercepts equal to Y intercepts. हम इसको A लेट कर लेते हैं, स्मॉल a। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। फर्स्ट पास इज 2,3, दैट इज 2 plus 3 is equal to a is 5, therefore from first answer is x plus y equal to 5. I have used the equation of the line in the intercept forms. सेम क्वेश्चन 13 है। इंटरसेप्ट फॉर्म के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 2, 2 and cut off intercept on the axis whose sum is 9, means this time this line passes through the point 2, 2. Now x intercept let is a, तो y इंटरसेप्ट इज 9 माइनस ए, बिकॉज सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 9। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पास इज 2, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय a, 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। 2 कॉमन, 9 माइनस a प्लस a इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a स्केयर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 into a minus 6 is equal to 0. a is 3 or 6. Line is x upon 3 plus y upon 6 is 1, or x upon 6 plus y upon 3 is equal to 1. Two possibilities of line will be there. Because if x intercept is 3, then y intercepts will be 9 minus 3, that is 6, and if it is 6, it is 9 minus 6, that is 3. Similarly, question number 18, let A and B is the midpoint of a line segment between the axes. This A and B is the midpoint given to you. Show that the equation of the line is a midpoint, I mean divide in a ratio 1:1. Let OA x intercept is h, OB y intercepts
is k. तो coordinate of this will be h comma 0. It will be 0 comma k. Then the coordinate of c will be h by 2, k by 2 will be equal to ab. c जो है वो मिड पॉइंट से आया और वो वहां से. दिस implies h is equal to 2a and k is equal to 2b. Equation of ab is x upon h plus y upon k is equal to 1. This implies x upon 2a plus y upon 2b is equal to 1. This implies x upon a plus y upon b will be equal to 2. यही आपने प्रूव करना था. सिमिलरली इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे तो कॉन्सेप्ट्स कोई मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. पॉइंट आर एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस. अब लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस तो यही रहती है. एक पॉइंट आर है एच एंड के. दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. डिवाइड इन द रेशियो 1:2. बिटवीन द एक्सिस मीन नीचे वाला पोर्शन आप एक्स एक्सिस लेंगे, ऊपर वाला पोर्शन आप 2 लेंगे. इक्वेशन ऑफ ए बी आपको निकालनी है. अब फिर कहेंगे कि लेट ओ ए एक्स इंटरसेप्ट ए लेट कर लेते हैं. फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ए कॉमा 0. ओ बी वाई इंटरसेप्ट्स बी लेट कर देते हैं. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा बी. Now what are the coordinate of R? 2a by 3 comma b by 3 is equal to h comma k. Means R दिया हुआ है और bisections formula है. This implies a is equal to 3h by 2 and b is equal to 3k. Equation of line AB is x upon a plus y upon b is equal to 1. x is equal to 3h by 2 ऊपर ले लेते हैं. 3k is equal to 1. So this is the answers of your question number 19. फर्दर सिंप्लीफाई के लिए इतना ही पीछे दिया होना चाहिए कि 2x अपॉन एच प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू 3. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19. इसमें कॉमनली मिस्टेक बच्चों की रेशो लेने की है. ये 1:2 को ध्यान में रखना. कई बार बच्चे 1 ऊपर ले लेते हैं और 2 नीचे, जबकि 1 नीचे ही आएगा. इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. मीनिंग इसमें यह है कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स A 3 0 and B
-2, -2 and C 8, 2 are कोलिनियर। इसमें यही रहेगा कि पहले आप इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लें। दैट इज y + 2 इज इक्वल टू -2 - 0 अपॉन -2 - 3 इंटू x + 2। दिस विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू x + 2। सो दिस implied 2x - 5y -6 इक्वल टू 0। ठीक है। इफ C 8, 2 satisfy first implies points are collinear, that is 16 - 10 - 6, which is true. This implies the points are collinear. मीन्स पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने के टोटल अभी तक आपके पास 5 अच्छे मेथड आ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शंस फार्मूला, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 0, मेथड ऑफ स्लोप्स एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। लेट अस टेक नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 से पास कर रही है एंड मेकिंग एन एंगल्स 2π/3 with positive direction of x-axis, means slope m tangent theta is equal to tangent of 2π/3, which can be written as tangent of pi minus π/3. This is minus tangent π/3 minus tangent 60 degree, that is minus √3. Therefore equation is y minus 2 is equal to minus √3 into x minus 0. This implies √3x plus y minus 2 is equal to 0. This is the answer. Find the equation of the line parallel to it. Equation of lines parallel to first implies slopes are equal, that is m आप सेम लेंगे minus √3. Crossing the y-axis, crossing the y-axis 2 unit below the origins and passes 0, -2. तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी? y + 2 is minus √3 into x minus 0, that is √3x plus y plus 2 is equal to 0. एक एक स्टेटमेंट्स की अगर जो वर्डिंग्स आपको क्लियर हैं तो सम्स में प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 15। Perpendiculars from the origin to a line
perpendiculars from the origin to the line meet at a point -2 and 9. Find the equation of the line. देखिए फिगर से समझने की कोशिश करिए। ये कोई लाइन L है जिसकी आपने इक्वेशन निकालनी है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट द पॉइंट्स -2 and 9. इक्वेशन ऑफ लाइन L निकालनी है। तो पहले तो आप यहां से यही निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ OA क्या आ जाएगा, 9 - 0 upon -2 0, दैट इज -9/2। और स्लोप ऑफ लाइन L क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 2/9। नाउ इक्वेशन ऑफ L क्या आ जाएगी लाइन कि y - 9 इज 2/9 इंटू x + 2। तो फाइनल आंसर इज 2x - 9y + 85 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. Now question number 16. Length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. मीन अब ये x और y में ना देके आपको L और C में दिए हुए लीनियर फंक्शंस हैं। मीन्स पॉइंट जहाँ पे हम x और y लेते थे यहाँ पे हम पॉइंट L और C ले लेंगे। ये मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स जो L है वो बेसिकली लेंथ है। लेंथ इज गिवन टू बी 124.942 एंड सेल्सियस जो दिया हुआ है 20। ये आपका पॉइंट A आ जाएगा। ऐसे ही पॉइंट B आपके पास आ जाएगा। लेंथ इज 125.134 एंड सेल्सियस इज 110. From here you have to find out the equations or express in terms of L and C. Now my point is कि you may use 2 point methods. आप यहाँ से पहले slope of AB निकाल सकते हैं, that is 110 - 20 divided by 125.134 minus 124.942. Difference of ordinate upon difference of abscissa. तो यहाँ से जो कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 90 divided by 0.192. Clear? Now equations. Equation of AB, C minus 20 is equal to 90 divided by 0.192 into L minus 124.942. Simplify 90L minus 0.192C minus plus 20 into 0.192 minus 90 into 124.492 is equal to 0.
इनका क्वेश्चन सब यही, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, एल की टर्म एक तरफ रख लेना एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑन द अदर साइड, मीन्स एल इज इक्वल टू 0.192 सी अपॉन 90 सी प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेना कि 20 इंटू 0.192, ये माइनस के साथ, प्लस 90 इंटू 124.942 डिवाइडेड बाय 90, ये आपका फाइनल आंसर आ जाए। थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हैं, आप इस टाइप से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपने ये रखना है कि आप एल और सी, अब सी से एंड ऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत होना, एल है तो लेंथ रखना, सी है तो 2140 रखना, वही 2 पॉइंट फॉर्म आपका चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है। द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 900 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14। ठीक है, सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस देख लो कि आप किस साइड पे रखोगे, मींस सेलिंग प्राइस को आप एस रख लो, डिमांड को आप डी रख लो, तो ए पॉइंट आप लेट कर लो, पर वीक डिमांड कितनी है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 14 रुपीज़ है और डिमांड जो है वो 980 है, और बी पॉइंट आपका एस मीन सेलिंग प्राइस एंड डी फॉर डिमांड। एंड दूसरे केस में आपका 16 लीटर्स है और 1220 है, ये लीटर्स में है। अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, एक इक्वेशन बन जाएगी। हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17। सी पॉइंट आप ₹17 कितने लीटर्स है, आप इसको एच लेट कर लो ताकि हम एच निकाल लें। वही सेम स्लोप आप ए भी निकाल लीजिए, 120 माइनस 980 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 14, 0 4 240 अपॉन 2 दैट इज 120। तो देख लीजिए एम आपके पास 120 आ गए। इक्वेशंस आप ए भी निकाल लो, तो डिमांड माइनस 980 ले लो इज इक्वल टू 120 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस 14, तो 120 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस डिमांड इज प्लस 980 माइनस तो 120s माइनस डी माइनस 00700 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ठीक है कि 120s माइनस डी इज इक्वल टू 700। नाउ when S is 17, तो आपने डिमांड डी, डी की जगह आप H रख लेंगे, H विल बी इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 700। तो डिमांड जो आएगी वो 1340 लीटर मिल्क रहेगी एट द रेट ऑफ ₹17 पर लीटर्स। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 10.2। 1 or 2 एग्जाम्पल्स आर रिमेनिंग लेफ्ट। एग्जाम्पल नंबर 12 आप अपने आप करेंगे। विद दिस आई हैव कवर्ड अप टू पेज नंबर 220। 220 पेज NCERTs में आपके कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। इतना मैंने आज इसमें आपका कवर कर लिया।
So this is all about your exercise 10.2 from question number 9 to question number 20.